5 বছর আগে যে অবস্থায় ছিল এখন তার চেয়ে অনেক উন্নত অবস্থায় এসছে। বর্তমান যে পরিচালন সমিতি আছেন, সম্পাদক আছেন, তারা সবাই মিলে চেষ্টা করে স্কুলের উন্নয়ন করেছে। এখানে সোলার সিস্টেম চালু আছে। এখানে স্কুলকে নতুন করে সংস্কার করে সেখানে হোয়াইট ওয়াশ করা হয়েছে এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও দেখছি ভালো আছে। সেই হিসেবে স্কুলের অনেক উন্নয়ন হয়েছে। আজকের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার খুবই প্রয়োজন। তার কারণ একটা বাচ্চা 365 দিন একটা ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করলে অন্ততপক্ষে বছরে একবার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হওয়া দরকার। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আজকে শরীর চর্চা হবে, ব্লাড সার্কুলেশন হবে, অনেক রকম ব্যাধি থেকে শরীরকে দূরে রাখবে। তাই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা খুবই প্রয়োজন। আর এই শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনারা জানেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অনেক অনুদান আছে। আজকের এখানে কন্যাশ্রী প্রকল্প তিনি চালু করেছেন। আজকের যে সমস্ত ছাত্রীরা 18 বছর পর্যন্ত যারা বয়স, তাদেরকে বছরে 1000 টাকা করে দেওয়া হয়। তারপরে তারা যখন 18 বছর পূর্ণ করে তাদের এককালীন 25,000 টাকা দিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করার জন্য ব্যবস্থা করে। এছাড়া মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে আজকের মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত রকমের সহযোগিতা করা হচ্ছে, স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে, এডুকেশন লোন দেওয়া হচ্ছে। তাই আমাদের বর্তমান মমতা ব্যানার্জি সরকার শিক্ষার জন্য অনেক আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আর আজকের এই সমস্ত অনুষ্ঠানে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আজকের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করবে, যারা 1st, 2nd, 3rd হবে, তাদেরকে আগাম আমি অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। এবং আজকের যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানে যে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। ওখানে শপথ বাক্য পাঠ হবে। এখন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছি, তোমাদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন সন্তু স্যার। সন্তু স্যার যেটা বলবে সেটা তোমরা একসঙ্গে সবাই বলবে। আবার বলছি ছাত্রছাত্রীদের সামনে হাত দিয়ে হাতটা এগিয়ে নাও এবং সন্তু স্যার যেটা বলবে সেটা তোমরা একসঙ্গে পাঠ করবে। প্রত্যেকে একটা হাত আমার মতো করে করো, ঠিক আছে? বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শপথ বাক্য। আমরা বদরতলা হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ 2026 সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রকৃত খেলোয়াড় সুলভ মনোবৃত্তির ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী সর্বপ্রকারে অনুসরণ করার অঙ্গীকার করছি। আমরা আরো প্রতিজ্ঞা করছি যে বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করে প্রতিযোগিতার জয় পরাজয় হাসি মুখে বরণ করে বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য রক্ষায় ও গৌরব বৃদ্ধিতে সহায়তা করব। শপথ বাক্য শেষ হলো এবং আমি তাকে অনুরোধ করছি ছাত্রছাত্রীদের একটু দড়ির লাইন ধরে দাঁড়িয়ে করে দিন। আমাদের 5 মিনিটের একটি নৃত্য পরিবেশনা আছে, ওদের ট্র্যাক লাইনের ধারে দাঁড় করিয়ে দিন। সবাইকে ট্র্যাক লাইনের ধারে দাঁড় করিয়ে দিন।
শঙ্কর, তুমি তোমার নৃত্য পরিচালনার টিম নিয়ে এখানে আসো। এখন আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক তথা 140 নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা আবু তারেক মোল্লা মহাশয়কে। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আজকের আমাদের বনতলা হাই স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের মেদিনীপুর বিধানসভার বিধায়ক হাজী আব্দুল খালেক মোল্লা সহ আমাদের পরিচালন সমিতির বিভিন্ন সদস্যবৃন্দ, আমাদের মেদিনীপুর গার্লসের সভাপতি ডাক্তার আলাউদ্দিন, মেদিনীপুর বয়েজের সভাপতি রিজওয়ান গাজী, আমাদের পরিচালন সমিতির সভাপতি সাদুদ্দিন সাহেব সহ মুক্তারদা এবং সবাই আছেন, এবং এখানকার আমাদের সমস্ত টিচার্স এবং ছাত্রছাত্রী। আমাদের বিশেষ অনেকগুলো কাজ আছে আজকের দিনে। আমরা যখন থেকে পরিচালন সমিতি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি তখন থেকে আজকের পর্যন্ত আমরা আমাদের যে কর্মকাণ্ড সেগুলো আমরা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্কুলে আমরা যখন এসেছিলাম কি জরাজীর্ণ অবস্থার মধ্যে স্কুলটা ছিল। আমরা আপনার চেষ্টা করে আমাদের সরকারের সঙ্গে টাই আপ করে বিভিন্নভাবে, এবং আমাদের বিধানসভার বিধায়ক আজ আব্দুল খালেক মোল্লাকে নিয়ে সহযোগিতা নিয়ে আজকে আমরা স্কুলটা আমূল পরিবর্তন করতে পেরেছি। আমাদের এই বিদ্যালয়ে কতগুলো বিভাগ আছে সেগুলো আমরা চালু করার চেষ্টা করছি। তাছাড়াও এই বিদ্যালয়ে আমাদের সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবেদন করার পর প্রায় 12,45,000 টাকা আমাদের এই স্কুলের জন্য বরাদ্দ করেছে, এবং সেই টাকা দিয়ে আমরা স্কুলটাকে আপনার চেষ্টা করছি যাতে সুন্দর তৈরি করা। এখানে আমাদের সোলার সিস্টেমের একটা সিএসসি যেটা টাই আপ করে সোলার সিস্টেম আমরা করেছি, যাতে বিদ্যুতের কোনো সমস্যা না হয়, ইলেকট্রিকের কোনো সমস্যা না হয়, সেটা আমাদের মাননীয় বিধায়কের তহবিল থেকে করা হয়েছে। এছাড়া আমরা এই স্কুলের পঠন পাঠনের দিকে আমরা লক্ষ্য রেখেছি, যাতে আগামী দিন আগের থেকে আরো ভালো পঠন পাঠন হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছরে যেমন বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানে চলছে। এই সময় দেবো না, শুধু এইটুকু বলবো আগামী বছর আপনাদের আরো ভালো কাটুক, এবং আমার যারা শিক্ষকবৃন্দ আছেন, শিক্ষাবৃন্দ আছে, আমরা চাইবো আপনারা আপনাদের এই যারা ছাত্রছাত্রী আছে তাদের ভালোভাবে পড়ান, এবং ছাত্রছাত্রীর অনুরোধ কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এই স্কুলে কোনো যদি ভালো ছাত্রছাত্রী বার হয় তাহলে সুনাম তার যেমন হবে, এবং যারা পড়াচ্ছে সেই শিক্ষক এবং শিক্ষিকা তাদেরও সুনাম হবে যে বরন্তলা স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা এত সুন্দর পড়ায়, এত ভালো পড়ায়, যে সেখান থেকে ভালো ভালো ছাত্রছাত্রী আজকে বিভিন্ন জায়গায় তারা পার্টিসিপেট করছে, বিভিন্ন জায়গায় তারা যাচ্ছে, বড় হচ্ছে। আমরা এই আশা রাখবো। এই কটি কথা বলে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ আমাদের বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সম্পাদক আবু তারেক মোল্লা মহাশয়কে। আমি শঙ্করকে এখন অনুরোধ করছি, শঙ্কর, তোমাদের যে নাচের অনুষ্ঠান আছে তাড়াতাড়ি শুরু করো, এরপরে আমরা স্পোর্টসের প্রবেশ করব। হ্যালো, বলছি যে সকল ছাত্ররা কালকে আমার কাছে এসেছিল একটুখানি দয়া করে তারা একটু মাঠে আসো এখনই। ছাত্রদেরকে ছাত্ররা কালকে পারফরমেন্সের জন্য নাম দিয়েছিল, তারা দয়া করে এক্ষুনি মাঠে উপস্থিত হও। যারা অনুষ্ঠানে নাম দিয়েছিল তারা শঙ্কর স্যারের সঙ্গে তাড়াতাড়ি মাঠে চলে এসো, তাড়াতাড়ি মাঠে চলে এসো। और देख रहे हैं आप एक्सक्लूसिव कवरेज द लोकल जर्नलिस्ट पर। শঙ্কর, দেরি হবে, তাড়াতাড়ি স্যারেরা বেরিয়ে যাবে।
अगर सके अरे मेरा भाई इधर आओ ना। चलो नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव कवरेज द लोकल जर्नलिस्ट की। बदरतल्ला हाई स्कूल एचएस का जो है सालाना स्पोर्ट्स हो रहा है, एनुअल स्पोर्ट्स 2026-13-14। और हम बात करेंगे हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब से, जो कि एमएलए हैं यहाँ के। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बदरतल्ला हाई स्कूल का स्पोर्ट्स है, एनुअल स्पोर्ट्स है। और बदरतल्ला हाई स्कूल आज से 5 साल पहले जो हालत में था, बहुत ही ख़राब हालत में था। तो हमारा मौजूदा कमेटी जो इलेक्शन जीत के आया, हमारा अबू तारिक मुल्ला, इन लोग सब कोशिश करके स्कूल का बहुत ही इम्प्रूवमेंट किया, उन्नयन किया। हमारा एमपी अभिषेक बनर्जी से 12 लाख के ऊपर से डोनेशन देकर स्कूल को और तरक्की किया। और स्कूल का बच्चा करीब 1000 बच्चा छात्र छात्री है। स्कूल का जो पढ़ाई है ठीक चल रहा है। और ये इलाका में इसकी बदरतल्ला हाई स्कूल बहुत ही पुराना स्कूल है। ये स्कूल को नया करके इन लोग उन्नयन करने का जो कोशिश किया है, ये बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही महत्व काम है। और ये काम हमारा जो कमेटी है, जो कमेटी किया है। सर, आज देखा गया है कि बदरतल्ला हाई स्कूल का वेब पोर्टल भी लॉन्च हुआ है, तो कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं आपको? साबिर हुसैन के टीचर इंचार्ज, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साबिर खान जो है हमारा टीचर इंचार्ज, वो भी बहुत काबिल टीचर है। उनके जरिए से यहाँ का स्कूल का बहुत ही तरक्की हुआ है। अबू तारिक मुल्ला साहब, क्या कहना चाहेंगे? अभी हम बात करेंगे टीचर इंचार्ज जनाब साबिर हुसैन साहब से। सर, वाकई आज वेब पोर्टल का जो है लॉन्च हुआ है, एक ऐतिहासिक कदम, क्या बोलेंगे आप? हमें ये वेब पोर्टल जो हम लोग लॉन्च किए हैं, ये डिजिटल जो प्रोग्राम चल रहा है, हम डिजिटली स्कूल को अपडेट किया है। और इसके लिए जो हेल्प किए हमारे परिचालन समिति का जो सेक्रेटरी साहब हैं अबू तारिक मुल्ला, उनके गाइडलाइन पे एमएलए साहब हमको गाइडलाइन दिए हैं। उन लोगों का गाइडलाइन लेके ही हम ये प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। सर, 13-14 प्रोग्राम देखा गया है और बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, यानी एक अच्छे तादाद में। इस तरह का इंस्पिरेशन लाने के लिए और क्या कर रहा है बदरतल्ला हाई स्कूल आने वाले दिनों के लिए? आने वाले दिन में बदरतल्ला हाई स्कूल का जितना भी अचीवमेंट आएगा, जितना भी नया एग्ज़ाम आएगा, हम सभी से गुजारेंगे, सबसे गुजार के एक नया स्टेज लाएंगे, जिससे से हम स्कूल को और अपग्रेड कर सकता है। जिस तरह से देखा गया है, एमएलए हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साथ हैं, आपके साथ हैं अबू तारिक मुल्ला। हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहे हैं मडिया बुरुज कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? मडिया बुरुज कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग का पॉलिटिकल आइडल जो कोई है तो एमएलए साहब हैं। हम लोग का राजनीतिक गुरु जिसे मानते हैं, जो उनका साथ 53 इयर्स का राजनीतिक का जो तजुर्बा है, उसी तजुर्बा से हम लोग वाकिबहल है। हम लोग उन्हीं के तजुर्बा को मान के चलते हैं। इंस्पिरेशन बाई सीएम ममता बनर्जी, क्या कहेंगे? एजुकेशन हेल्थ पे लेकर आ रहा है, उसी को फॉलो कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी और हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला। ऑफ कोर्स हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब, अभिषेक बनर्जी माननीय पार्लियामेंट हम लोगों का है, ममता बनर्जी ऑनरेबल सीएम है। वो जो आदर्श लेके चल रहा है, शिक्षा के लिए जो नया रास्ता निकाल रहा है, उसी रास्ता से हम लोग चल रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे अबू तारिक मुल्ला साहब से, जो कि वार्ड नंबर 140 के काउंसलर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? वेब पोर्टल का लॉन्च, वाकई एनुअल स्पोर्ट्स बदरतल्ला है। देखिए, हम लोग 3 साल से हमारे कमेटी चल रहा नया से, इसका आगे कमेटी था। हम लोग आने का बाद हम लोग हमारा एमपी अभिषेक बनर्जी से फंड लेके हम लोग डेवलपमेंट किया है 12,45,000 रुपया। उसके बाद हमारे एमएलए साहब इधर जो इलेक्ट्रिशियन का जो प्रॉब्लम था, और सोलर लाइट देके उनको कवर किया है। और हमारा जो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड को ठीक करने के लिए हम लोग प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, इसको भी हो जाएगा। और हमारा जो एजुकेशन के बारे में है, जो वो एजुकेशन हमारा जो टीचर्स है वो अच्छा से काम कर रहा है, और भी आगे से और पढ़ाई लिखाई अच्छा हो रहा है। और हमारा जो पोर्टल चालू हुआ है, देखा वेबसाइट चालू हुआ है नया। अभी कोई स्कूल में अभी चालू नहीं है, फर्स्ट हमारा बदरतल्ला स्कूल में चालू हुआ। जो हमारे स्कूल के बारे में सबको जानकारी मिलना चाहिए, जो क्या है नहीं है।
हम लोग क्या किया है, क्या काम किया है, हमारा चीफ मिनिस्टर क्या काम किया है, हमारा एमपी साहब क्या काम किया है, एमएलए साहब क्या किया है, कमेटी क्या काम किया, सब इसमें है। और क्या पढ़ाई लिखाई कैसा हो रहा नहीं हो रहा, सब इसमें डिटेल्स है। तो हम सबसे आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे कि सब वेबसाइट देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो इधर का स्टूडेंट है उसको इधर भर्ती कीजिए, अच्छा से इधर पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, यही कामयाब तक। क्या लगता है तारिक दर जिस तरह से जो है मेटिया बुरुज कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहा है, डेवलपमेंट को लेकर, हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, सेवा सराय जो देखा गया है डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ा स्टेट जो पैगाम जा रहा है पूरे अदर स्टेट्स को भी जा रहा है, क्या बोलेंगे? देखिए हमारा गवर्नमेंट जब से आया है 2011 से आया है, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट, देखिए एजुकेशन बोलिए या हेल्थ बोलिए, सब तरह तरक्की किया है। अभी आने वाला दिन में ऑपोजिशन जो लोग है वो लोग का तो कोई जगह नहीं मिल रहा, इसीलिए वो आन फान बक रहा है, सांप्रदायिक सुसुड़ी दे के या हम लोग का जात पात लेके, धर्म लेके काम कर रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जो काम कर रहा है एजुकेशन लेके, देखिएगा आप, बहुत अच्छी तरह से काम किया है। हमारा लड़का लोग, स्टूडेंट लोग पढ़ाई लिखाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बंदोबस्त किया है, स्टाइपेंड दे रहा है और भी स्कॉलरशिप दे रहा है। उसके बाद स्कूल का डेवलपमेंट में बहुत काम किया है। और हेल्थ के आप देखा, हेल्थ में कितना तरक्की किया है। पहले एसएस केम कैसा था, मेडिकल कॉलेज कैसा था, देखने में कैसा था, अंधेरा में कोई आदमी जाने नहीं सकता था, अभी कितना तरक्की किया। लेकिन ऑपोजिशन है, वो लोग बोलेगा, लेकिन अब बंगला का, हमारा बंगाल का आवाम जानता है ममता बनर्जी क्या है। इसीलिए आने वाले दिन में ममता बनर्जी इधर तरक्की करेगा और चीफ मिनिस्टर बनेगा। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव कवरेज लाइव चल रहा भाई। नाजरीन आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव कवरेज द लोकल जर्नलिस्ट। के बाद देखा आपने एमएलए हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला, अबू तारिक मुल्ला काउंसलर हैं, इन्होंने डेवलपमेंट की बात की, एजुकेशन की बात की, जो कि सीएम ममता बनर्जी का आदेश है। अभी आपको दिखाएंगे ग्राउंड में किस तरह से बच्चे स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं किस तरह से किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं द लोकल जज के एक्सक्लूसिव कवरेज फ्रंट में देख रहे हैं आप किस तरह से तमाम बच्चे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी तरह बने द लोकल जज के साथ एक्सक्लूसिव कवरेज देख रहे हैं स्पोर्ट्स एनिमल बदौलतुल्लाह हाई स्कूल से। स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं स्पोर्ट्स किस तरह से कर रहे हैं। देख रहे हैं नाज़रीन एक्सक्लूसिव कवरेज द लोकल जज सर। देख रहे हैं लोकल जर्नलिस्ट की। किस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं ये लोग, आप लोग देख रहे हैं लोकल जर्नलिस्ट। स्टेप बाय स्टेप स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप।
थैंक यू वेरी मच। और देखा आपने किस तरह से और ये देखें तमाम डिग्नेटरीज यहाँ पर मौजूद है, किस तरह से स्टेप्स लिया जा रहा है। और ये सेकंड स्टेज के लिए रेडीनेस देख रहे हैं आप, तैयारी है बच्चों की। ये तमाम बच्चियां यहाँ